ये जो सेशन है ये डेडिकेटेड टू आजादी की अमृत महोत्सव 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। हमने पहले भी कहा कि हमारे जैसे इस तरह के जो जो सत्र है वो हमारे आजादी की अमृत महोत्सव को समर्पित है। हम उसी महोत्सव को और भी हम ऐसे ही योगदान करेंगे इसी महोत्सव में और हमारे आहुति हमारे नॉलेज के थ्रू देंगे इस महोत्सव में। तो पहले तो मैं मैम को स्वागत करूं इस मंच में। तो उससे पहले मैं मैम के बारे में आपको रूबरू कराता हूं। आज मैम जिस सत्र पे आपके साथ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में जुड़ेंगे वो भारत की जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, वन ऑफ द richest heritage, that is Indian Hindustani classical music. Dr. Sudha Mathur is a former associate professor, Hindustani classical vocal music, SPM College, Delhi University. She has had more than 44 years of experience of teaching classical vocal music. Her field of specialization is khayal, thumri, ghazal, and devotional music. She specializes in rare ragas and she has performed these ragas at various platforms mentioned below. Dr. Mathu has been a regular performer for the last 2 decades in classical and light music broadcast from AIR, Delhi and Doordarshan Delhi. A gold medalist in BA honors in 1970 from Delhi University. Dr. Mathu's PhD from same university was on current trends on Hindustani classical music. That is a very relevant topic. Ma'am has done her PhD on that topic. Dr. Mathur has written several articles on music in prominent journals along with a book on Hindustani Sangeet ki Rang Sampada. She has been a guide for a large number of MPhil and PhD scholars, besides teaching the traditional art under Guru Shishya Parampara to several students. She has been a member of the Board of Scholarship of CCRT and she has a long association, nearly 35 years with CCRT, ma'am. Ma'am belongs to Kirana Gharana. Dr. Mathur learned from traditional art form Professor B.N. Datta for more than a decade. Agra Gharana Parampara from Padma Shri Professor Sumati Mutatkar for 3 decades. Learned the art of Thumri singing from Padma Shri Vidushi Naina Devi for 5 years. Dr. Mathur has performed at various prestigious national and as well as international forums, that is Tansen Festival, Gwalior, Swami Haridas Festival, Brindavan, Lucknow Mahotsav, Abadh Sandhya and Taj Mahotsav and many more. Not only in India, in abroad also, ma'am has done her job as a torch bearer to explore Indian classical music outside India also. So thank you, ma'am, for I am privileged to explore your prestigious job in that field. And ma'am, I heartily welcome on that virtual platform to you. And in front of us, we have 91 participants from 12 different states of India. It's like a mini India in front of our screen. Ma'am, we may, as usual, we may deliver our lecture demonstration in Hindi and English because there is various parts of India are joining that training program. Once again, on behalf of all participants and on behalf of CCRT, I welcome you on that virtual platform. Now over to you, ma'am. Thank you so much. You have already introduced me, and I start my work from that Hindustani classical music, the details of classical music and performing art. So, about Hindustani classical music, I would say that it is the swaras
and the talas and the ragas, which are combined together and performed in Hindustani classical music. So it is basically a performing art, and this art is popular in northern part of the India, and in Karnataka, in southern part, it is known as Carnatic music. Both the systems are uh, equally normal and they mesh together, but there is only a difference of language and way of presentation, and these are the minor things. So I start my this thing with I would say that in this current affairs, music is very popular, and especially the classical music. It is to be learned through traditional music only while sitting at the feet of the guru, and there is no other way to learn it. And it takes very long hours, long years to learn, say about 10 to 12 years to learn from particular guru and the traditional art. So now I start my this thing by saying that Hindustani music is very popular and it is the performing art which we perform, and we have to do our daily riyaz. It requires 4 to 5 hours minimum of practicing, then only we can perform. Otherwise, it's difficult to perform. And the basic of the classical music is swar, tal, and the rag. Swaras are 7, as you know, sare, gama, pada, ni, sa. And the tal, there are various talas like teen tal, the most popular, ek tal, char tal, jap tal, rupak, tivra. And the ragas are number of ragas like the beginning rag, Yaman, Bhairav, Rupali, Bhimpalasi, Des, Bihag, and so many other ragas. They are all performed. And we have to daily practice these ragas, then only we can perform. Ragas are very beautiful and they are performed in two ways. One is Vilambit or a slow khyal, and the other is fast or a drut khyal. First, we begin with Vilambit khyal, followed by slow khyal in teen tal or ek tal or jap tal or rupak tal. So this is how we perform. And there are number of ragas like Bhupali, Kalyan, Kedar, Hamir, Des, Bihag, Bhairav, Bhairavi. These are the popular ragas. And the talas are teen tal, char tal, jap tal, sul tal, rupak tal, brahma tal, so many other talas. All these talas are performed. Besides Khyal, we have Drupad also to perform. In Drupad, we have 4 parts, Sthai Yantra and Sanchariya Bhog. Whereas in Khyal, there are only 2 parts, Sthai and Antra. That's all. And there is Vilambit Khyal, there is Madhyalaya Khyal, and there is Drut Khyal. 3 types of Khyal which are performed. The first is the morning rag, Bhairav, and in the evening it is Yaman, which is normally performed. Both the ragas are very beautiful and they are to be performed elaborately so that they are widespread and they look so beautiful. When you listen to them, they are so beautiful. And I would give you an example of a rag like Rag Yaman. In Rag Yaman, there is
Madhyam, which is Tivra, and all the other notes are Shuddh. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa. And there is a very popular composition which I am going to sing right now. मोरे गगरी ना भरन दे मोरे गगरी ना भरन दे डीटलंगर मुसे करत रार मोरी गगरी ना भरन दे बार बार समझाऊं तो है बार बार समझाऊं तो है ढीठल गरबा एक न मानी हार गई मैं तो हार गई मोरी गगरी नाव बरन दे मोरी गगरी नाव बरन दे. So besides Drupad, Khayal, we have Thumri, we have Tarana also. Tarana or Tillana, it is known as, it's a very popular form. And in Tarana, there is no alap. It is the Dirdar Dani, Tadare Dani, Udani Dani, Dim Tana Nana Nana, Tom Tana Nana Nana. Like this, the lyrics are there. And in all the ragas, we have Taranas. It's a beautiful composition, Tarana. Then we have Thumri also. Thumri, Kadar Piya ki, Sanat Piya ki, Lalan Piya ki Thumri. Thumri is a very emotional and a beautiful composition. And like Begum Akhtar used to sing Thumri, Girja Devi used to sing Thumri. So there are so many Thumri. Purvi Anki Thumri. And they are very popular. Bandish ki Thumri. These are also very popular Thumris. And it's an emotional, this thing, Thumri. Thumri is an emotional presentation. It's very beautiful in singing. And in that there is no alap. It is only rendered through the words. Through the words only we render Thumri. And that's a very beautiful. After Khayal, Thumri is rendered. First we have to perform Vilambit Khayal, then Drut Khayal, and then thereafter Thumri. Thumri is a very beautiful form. It's an emotional form. It is performed. Drupad Dhamar also, the ancient compositions, like our Dagar brothers, they perform Drupad, Ram Chatur Malik, Lakshman Prasad Chaube, they only perform Drupad. Drupad, Dhamar, then Khayal, Thumri, Tarana, these are the all music forms we perform. And there are numerous ragas in Hindustani music. Morning ragas, afternoon ragas, evening ragas, late night ragas, seasonal ragas like Megh Mallar, Miya Mallar, God Mallar. They are only performed during rainy season. They look very beautiful. The compositions are very beautiful. So this is how we perform. Now a good example of a Thumri I would render. It's in Khamaj, Rag Khamaj or Mishra Khamaj. And the Thumri is like
कान्हा नंद के खिलाड़ी होरी खेलन न जाने होरी कान्हा नंद के खिलाड़ी होरी खेलना न जाने होरी खेलन न जाने कान्हा नंद के खिलाड़ी होरी खेलन न जाने होरी खेलन न जाने का नानंद के खिलाड़ी. Like this, there are other Thuris also. For example, नीर भरन कैसे जाऊं अकेली आज नीर भरन कैसे जाऊं अकेली आज डगर चलत मोहे करत रार अब डगर चलत मुझसे करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी रे आज नीर भरन कैसे जाऊं सखी रे आज डगर चलत मुझसे करत रार अब डगर चलत मुझसे करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी रे अब नीर भरन कैसे नीर भरन कैसे नीर भरन कैसे जाऊं सखी रे आज. There are so many other Thumris also which are performed in Hindustani music. Then there is Khayal, Tarana, Drupad, Dhamar, Sadra. Sadra of 10 matras, Japtal is known as Sadra. And it is sung in Drupad style also and in Khayal style also, both ways. Sadras are also very popular in Hindustani classical music. Now I will perform a Khayal in a rag in the rag which is known as Vilas Khani Todi. The rag is Vilas Khani Todi. Itani yar jai suno मोरे सैया इतनी यार जय सुनो मोरे सैया अपनो ना बिसायो घर छाड़ कैसे सुख पायो मोहे बिरहा सतायो इतनी अरज सुनो मोरे सैया अपनो ना बिसायो घर छाड़ कैसे सुख पायो मोहे बिरहा सतायो इतने अरज सुनो मोरे सैया घर की सुध लीजिए घर की सुध लीजिए
अपनों ना बिसायो घर के से सुख पा आयो इतनी अरज सुनो मोरे सई मोरे सैया अपनो ना बिसायो घर छाड़ कैसे सुख पायो होए बिरहा सतायो इतनी अरज सुनो मोरे सई मोरे सैया अपनो ना बिसायो घर छाड़ कैसे सुख पायो मोए बिरहा सतायो इतनी अरज सुनो मोरे से मोरे सैया घर की छाड़ दे अपनों ना बिसायो घर छाड़ कैसे सुख पायो इतनी अरज सुनो मोरे सई मोरे सैया. Then the next is sa sa re ga pa da sa pa da sa re ga re ni da ma ga re ga pa da ni da ma ga ga pa da ma ga ga re ni da sa pa da sa re ga pa da sa re ga re ni da ma ga ga pa da ni da ధని ద మగరి గపద మగరి రి గ మగరి సరి గరి నిద పద సరి గరి గరి స గరి సరి గపద సరి గరి నిద మగరి స గరి గరి సరి గపద ని నిద మగరి స గరి సరి గపద ద మగరి స గరి గప ద మగరి స ప మగరి స మ మగరి స గరి re re sa ni sa re ga pa da pa da sa re ga re ma re sa ni sa ni da pa ga pa ni da ma ga re ga pa da ma ga ga re ni da sa घर की सुध लीजे अब अपनों ना बिसायो घर कैसे सुख सुख पा आयो इतनी अरज सुनो मोरे सई मोरे सई मोरे सैया आ इतनी अरज सुनो मोरे सैया आ गरे ग प ध नि ध म ग रे ग प
Dha ma ga re ga ma ga re za re ni za ni za re ga za re ga ma re ga pa da ni pa da ni sa re ga re ni da ma ga re ga pa da ni da ma ga re ga pa da ma ga re ga ma ga re za ni da sa re ga pa da sa re ni da ma ga re sa re ga pa da sa re ga re ni da ma ga re sa re ga pa da sa re ga re ma ma ga re sa re ni ni da da ma ga re ga pa da ni da ma ga re ga pa da ma ga re ga ma ga re ga za re za ni za re ga re ga pa da sa sa re ga re ni da ma ga re za re ga pa da ni da ma ga re ga pa da ma ga re ga re za sa re ga re ga pa da sa da sa re ga re ni da ma ga re za re ga pa da ni da ma ga re ga pa da sa re ga re ma ga re sa ni sa re ga re ni da ma ga re za re ga pa da ni da ma ga re ga re ga re za re ni za re za o o o o oh, 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 Dani sare gare sare ga pa da pa ga pa da sa pa da sa re gare gare ti da ma gare sare ga pa da ni da ma gare ga pa da ni da ma gare ga pa da ma gare ga ma gare ga ma gare gare sare ni sare ga sare gare sa gare sare ma gare ga pa gare ga da pa ma pa ni da pa da sa ni da ni re sa ni sa gare sare ni sa re sa da ni pa da ni da ga pa da pa re ga ma ga sa re ga re ni sa re ga pa da ga re ni da ma ga re sa re ga pa da ga re sa re sa ni sa da ni pa da ga pa re ga sa re ni sa re ga pa da ni da ma ga re sa re ga pa da ma ga re ga ma ga re sa re sa ni sa ni re ga pa da sa re ga ma ga re sa ni da ni da pa da pa ga re sa re ga pa da ni da ma ga re sa इतनी अरज सुनो मोरे सैया अपनो ना बिसाए घर छाड़ कैसे सुख पायो मोहे बिरहा सतायो इतनी जसुनो मोरे सई मोरे सैया घर छाड़ कैसे सुख पायो मोहे बिरला सतायो इतनी अरज सुनो आ आ आ आ
आ आ आ मोरी गगरीना बरन दे मोरी गगरीना बरन दे डिटलंगर मुस करत रार मोरी गगरीना बरन दे बार बार समझाऊं तो है बार बार समझाऊं तो है ढीठ लगरवा कहूँ न माने ढीठ लगरवा कहूँ न माने हार गई मैं तो हार गई मोरी गगरी नाव बरन दे मोरी गगरी नाव बरन दे जीतलंगर मुस करत रार मोरी गगरी नाव बरन दे बार बार समझाऊं तो है बार बार समझाऊं तो है ढीठ लगरवा कहूँ न माने ढीठ लगरवा कहूँ न माने हार गई मैं तो हार गई मोर गगरी नाव दे गगरी नाव बरन गगरी नाव बरन गगरी नाव बरन दे और क्या है? You want to ask any question? यस मैम, यस मैम। Speaking. हाँ जी मैम, बहुत ही अल्टीमेट आपके दर्शन हुए आज हमें। हम तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जी। आप जैसी कलाकार के हमें दर्शन हुए, आप जैसी इतनी उच्च आत्मा के हमें दर्शन हुए। मेरा एक प्रश्न है मैम। जी जी। एक मैडम हम जानना चाहते हैं घराना से क्या मतलब होता है, नंबर 1। क्या ये सिंगिंग का एक स्टाइल होता है कुछ घराना? नहीं, घराना जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टाइल ऑफ सिंगिंग कोई यस यस यस। स्टाइल ऑफ सिंगिंग कोई जैसे हमारे यहाँ दिल्ली घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, ये अलग, इनके सबके अलग अलग स्टाइल्स हैं। ओके ओके। अगर एक एक राग को पटियाला घराने में गाएं और उसी राग को फिर दिल्ली घराने में गाएं तो उनकी सिंगिंग में डिफरेंशिएट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, वो अलग होगा ही, दोनों का अलग अलग। ओके। अच्छा जी, वो क्या फर्क रहता है? हमारे जैसे म्यूजिक लवर को कैसे पता चलता है ये? वो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन का है ना, ओके ओके किस ओके। तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो दोनों सुर घरानों के अलग अलग स्टाइल है। ओके, सुर समान रहेंगे लेकिन प्रेजेंटेशन का यस स्टाइल अलग हो जाता है। यस अच्छा, यस। दूसरा मैम मेरा प्रश्न ये है, तराना, ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी भी ये एक स्टाइल है गाने के, तो इनमें हमें कैसे पता चल सकता है कि ये ठुमरी गा रहा है कोई, या ख्याल गा रहा है, या ध्रुपद में गा रहा है, या तराना गा रहा है? एक आम लिसनर कैसे समझे ये? ठुमरी जो है ना वो तो ज्यादा इमोशनल फीलिंग वाली होती है ठुमरी। लाइक जैसे? ठुमरी में इमोशनल फीलिंग ज्यादा होती है। मैम प्लीज कुछ गा के थोड़ा सा हमें एक बार पता चल जाए कि ये ठुमरी है स्पेशल। हम्म। तो ठुमरी में इमोशनल फीलिंग ज्यादा होती है, वो इसीलिए अलग होती है ख्याल और ध्रुपद से, तराना से। एक फॉर एग्जाम्पल, काना
खेलन न जाने कान आनंद के खिलाड़ी हो रे, खेलन न जाने रे, खेलन न जाने, like this. तराना तराना हाँ यललमु ना दे रे तन ते दे रे ना त दे ना दे दे त दे रे ना तार द दिर दिर तोम दिर दिर तोम दिर 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 तोम तनन तोम तनन तन रे दा रे दिर यललमु ना दे रे तन त दे रे ना त दे ना दे दिर त दे रे ना यललमु यललमु दिन तद्रे यललमु ना दिरे तन दिरे ना तदिरे ना, like this. तराना तराना तिल्लाना, इसके बोल जो है वो कोई मीनिंग नहीं रखते हैं। दिर दिर दानी तदारे दानी तोम तना नाना कोई मीनिंग नहीं रखते हैं, बस दे ओनली रिदमिक चार्म के लिए रखा गया है इनको। ओके, और खमाज से कैसे, खमाज क्या चीज होता है मैम? खमाज एक राग का नाम है, मिश्र खमाज खमाज सा ग म प द नि सा नि द म प द म ग म ग सा, ये खमाज है। जी बहुत अच्छा मैम, आपने बताया, काफी नॉलेज बढ़ी है इस चीज से हमारी, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। Thank you, sir. आदरणीय को मैम। सर्वप्रथम साधुवाद, आपकी संगीत साधना को प्रणाम। मैडम, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है? कुछ नहीं, वो सेम है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत सेम है। जो नॉर्दर्न पार्ट में गाया बजाया जाता है वो हिंदुस्तानी संगीत, और जो दक्षिण भारत में है वो कर्नाटक संगीत। अच्छा, ये जो आपने अभी राग सुनाए, चाहे ठुमरी हो चाहे तिल्लाना हो, इसमें ज्यादातर हिंदी जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। क्या इन्हीं रागों पर आधारित अन्य भाषाओं में भी रचनाएं मिलती? हाँ बिल्कुल मिलती हैं, मिलती है बिल्कुल अन्य भाषा। Namaskar, ma'am. This is Ayanangshu Shah from West Bengal. Ma'am, am I audible? Yes, yes. Ma'am, I have a few questions. First Yes. of all, initially there was Dhrupad Sangeet. Then during the Middle Ages, there came the Khayal Sangeet. So during the Dhrupad era, was the concept of raga as prominent as it came to be during the Middle Ages when the Iranian influence came into the Indian music and Hindustani classical form developed? Yes, ध्रुपद भी रागों पर आधारित होते हैं, ख्याल भी रागों पर आधारित होते हैं, दोनों रागों पर आधारित मैम होते तब भी रागा था। हैं। Yes, अच्छा yes. अच्छा, तो बाद में उसका मॉड्यूलेशन किया गया तानसेन, उसके बाद हाँ वो तो चेंज तो होते रहते हैं, रागा चेंज तो होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा अच्छा। मैम और एक प्रश्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ठाट एंड रागा? ठाट तो जननी है, उससे उत्पन्न राग होता है। ठाट जननी तो है, मैम ठाट गिव्स बर्थ टू द राग, उससे राग उत्पन्न होता है। ठाट गाया नहीं मैम जाता, ठाट, राग गाया जाता है। अच्छा मैम ठाट में भी स्वर होते हैं, स्वर होते राग हैं, में सब भी कुछ स्वर होते होते हैं, हैं, तो दोनों में बस अंतर ठाट कैसे? ठाट गाया नहीं जाता जबकि राग गाया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। और मैम एक फाइनल चीज, क्या आप रियाज जो करते हैं, रियाज का कोई डेमोन्स्ट्रेशन हमें दे सकते हैं कि रियाज हिंदुस्तानी क्लासिकल में रियाज कैसे किया जाता है? क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि रियाज बहुत जरूरी है क्लासिकल म्यूजिक स्वर में। साधना है ना, स्वर साधना है। प्रातः काल, दोपहर, संध्या काल और रात्रि काल चारों प्रहर में अभ्यास करना होता है, और उसका वही तरीका है। स्वर लगाइए, सा रे ग म प प म ग रे सा, स्वरों पे बार बार रुक रुक करके अभ्यास किया जाता है।
अच्छा अच्छा, धन्यवाद मैम। और कुछ, एनी अदर क्वेश्चन? मैडम जी मैडम, मैं बोल रहा हूँ मैम, मैं आपसे मेघ राग के बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। आप मेघ राग को सुनाने का कष्ट करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेघराग जो है वो मल्हार का एक प्रकार है जो कि वर्षा काल में गाया जाता है, मेघराग। और सा रे मा प नी सा नी प म रे नी सा रे म प म रे म प नी सा प म प नी सा रे सा नी प म प मरे सारे नी सा। ये मेघराग है, वर्षा काल में गाया जाता है। और ये एक राग देश है, ये भी वर्षा काल में ही गाया जाता है। नी सा रे मा प नी सा नी द प द म ग रे ग नी सा म ग रे म प नी सा रे नी द प प द म ग रे म ग रे ग सा रे नी सा रे म प नी सा। राग देश। मैम क्या ये आपने वंदे मातरम वाली, ये वंदे मातरम में यही यही राग लगा हुआ है? हाँ, यही राग लगा हुआ है, देश राग जी ये जी लगा जी, हुआ है। पता, एक फील आ रहा था। वंदे वंदे, मातरम जी जी, सुजलाम सुफलाम सुफलाम। मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जी सेम बिल्कुल साफ। आपने जब वो स्वर लिए, जब आपने देश राग के, तो वो साफ फील हो रहा था कि ये वंदे मातरम का जो एक कंपोजिशन है वो साफ झलक रहा था आपके गायन से। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? जी नमस्ते मैम, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जी बोलिए। मैम मेरा आपसे एक सवाल था कि हम्म, हम लोग पैदाइशी से ही रविंद्र संगीत सुनते आ रहे हैं हम्म, और रविंद्र संगीत का मतलब ऐसा होता है कि हर कोई गाना किसी ना किसी राग पे तो बेस्ड होता ही है। और रविंद्रनाथ जी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक से भी काफी काफी प्रभावित थे। उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को भी अपने गाने में इंक्लूड किया। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी ऐसा कोई वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का प्रभाव है? ये मेरा सवाल है। मतलब ऐसा तो नहीं है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी कभी वेस्टर्न म्यूजिक का प्रभाव आया है या ये ऑपोजिट है, वेस्टर्न म्यूजिक में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का इफेक्ट हुआ है? हिंदुस्तानी म्यूजिक में तो नहीं हुआ वेस्टर्न म्यूजिक का कोई इन्फ्लुएंस, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा। और कुछ? और कोई? मेरा और एक आखिरी सवाल था, राग और रागिनी में अंतर क्या होता है? रागिनी गाई नहीं जाती, राग गाया जाता है। रागिनी जो है वो गाई नहीं जाती है, राग गाया जाता है। ये फर्क है दोनों मतलब में। वो बजाया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट, रागिनी? नहीं, वो सेम चीज है, गाया नहीं जाता, बजाया नहीं जाता, राग गाया जाता है। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू मैम। और कोई सवाल? डिफरेंट फॉर्म्स लाइक है ठुमरी, ख्याल, टप्पा, तराना, ये सारे म्यूजिकल फॉर्म्स हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के।
और एक से एक खूबसूरत है। टप्पा, मैं भजन, झूला गीत, ये सब। मैम थोड़ा बहुत मैं हल्का फुल्का बचपन में ठीक ठाक सा स्वरों में बंधा हुआ था तो गुनगुना लेता था, लेकिन मैंने विधिवत शिक्षा नहीं ली, इसलिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है। हम्म, इसके लिए तो विधिवत शिक्षा लेनी होती है। जी जी, मैं बिल्कुल ये शास्त्रीय संगीत तो नियमों से बंधा हुआ है, बिना विधिवत शिक्षा के इसको अच्छे से नहीं सीख, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा बहुत सुर में गा लेता हूँ बस। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, रियाज करना पड़ता है रोज। जी जी जी। और एक कॉम्पोजिशन सुना देती हूँ। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, राखो शरण, हे गोविंद, राखो शरण, अब तो जीवन हार तेरे, हे गोविंद, नीर पिवन हेतु गयो, नीर पिवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण धरि पछारे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। ये भजन है, ये दिस इज ए भजन। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम एक जिज्ञासा और है जी। कि जैसे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अधिकांश जो कवि हुए हैं, हम्म जैसे सूरदास जी, हम्म गोस्वामी तुलसीदास जी, अष्टछाप के जितने भी कवि हुए हैं लगभग कृष्ण भक्ति के, उन सभी ने जो रचनाएं करी हैं, जो लिखी हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के राग हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। हम्म क्या भक्ति काल के अलावा भी रीतिकाल या उसके बाद के अन्य कवियों ने भी इन रागिनियों को या रागों को अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में उकेरने का कार्य किया है? अगर हैं तो आधुनिक में कुछ नाम गिना सकती हैं क्या मैम? हाँ, कुछ राग तो ऐसे हैं जो गिनाए जा सकते हैं, जैसे भैरवी है, भूपाली है, बियाग है, देश है, इनमें है कुछ ऐसे रचनाएं। मैम मीराबाई जी की जो रचनाएं हैं, उनमें भी जो राग हैं, क्या शास्त्रीय विधा से बिल्कुल समन्वित हैं, युक्त हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शास्त्रीय संगीत से ही जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और कोई सवाल? मैम कुछ राग के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर सकते हैं हमसे? जी, कुछ रागों के लिंक, राग जी जैसे जैसे भूपाली, भैरवी, देश, जी 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 मैम। तिलक, कामोद, हमीर, मालकोस, यमन, भैरव, भैरवी, ये सारे राग यूट्यूब में देख सकते हैं आप लोग, जी यूट्यूब में देख ठीक है मैम। सकते जी हैं। थैंक यू। ओके।
मिथुन जी। नमस्कार मैम, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ 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 हाँ। जी मैम, हम इस सेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम और है। पिक्चर का जो कंफ्यूजन था पोजीशंस को और राग को लेके, चाहे तो आप इनको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और अभी नहीं, अभी टाइम है हमारे पास और थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। जी जी मैम। सुधा मैम, ये जो हमारा सेशन था ना, इसमें और एक स्पेशल बात थी। जी। जितने भी इस प्रोग्राम में हमारे परफॉर्मेंसेस हैं, वो हम्म आजादी का अमृत महोत्सव को हमने डेडिकेट किया है। तो इसके अंदर में अगर हम कुछ देशभक्ति की चीजों को एड्रेस करेंगे, कुछ रागाज को, और उसमें कुछ ऐसे सिंगिंग लें हम जिसमें टीचर आपके साथ थोड़ा पार्टिसिपेट कर पाए, उनको गाइड कर पाए आप। तो वो आजादी का अमृत महोत्सव का एक सेलिब्रेशन जैसा है जो हम प्रोग्राम में हम करते हैं। क्योंकि ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन ही सही, बट एड्रेस करने से अच्छा है। और एक दो राग सुना देती हूँ मैं आपको। ये राग भैरवी, भैरवी मॉर्निंग में गाया जाता है ये। सारे गम पदनि सा सानी धप मगरे सा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अप बल तप बल और बहु बल, अप बल तप बल और बहु बल, चौथो है बलराम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, हरि को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सत श्रीकाल मैम। यस मैम, जैसे आपने म्यूजिक की बात की है, तो मैम मैं पंजाब से हूँ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ पंजाब तो हुआ मैडम मैं। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा अभी। हेलो। हाँ अब बताइए। जी मैम, मैं पंजाब से हूँ। मैम, जैसे हमारे यहाँ गुरबानी का कीर्तन होता है, उसमें मैम जो राग जो हम मतलब यो यूज करते हैं, वो राग यही वाले होते हाँ यही वाले होते हैं, सब यही राग होते हैं वो भी। हैं, कुछ अलग होते हैं। जैसे उनमें बोला कि 38 रागों में से वो 38 राग के यही राग होते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। मुझे डाउट था कि जैसे वो गुरबानी का पाठ करते हैं, जब वो कीर्तन करते हैं तो अलग अलग से होते हैं, वो यही राग होते हैं जैसे यही राग राग होते बसंत हैं, होता है। बिल्कुल यही जी राग। जी मैम। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कोई डिफरेंट फॉर्म बताइए, जैसे ठुमरी को या गजल। कोई ठुमरी। ये राग खमाज में ठुमरी है। ग म पद नि सा नि सा नि ध पद सा नि ध म पद म ग सा। सा ग म पद ग म ग सा, ग म पद नि सा ध नि पद पद सा नि ध म पद म ग सा ग म प म ग
सा तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध बात की तू पाप पुण्यहारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, नाथ तू अनाथ, तू अनाथ कौन हो सो, जो त्यो तुलसी कृपा, जो त्यो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लगता है कि बराबर आपको सुनते ही रहे हम लोग। जी, एक जी, समय भी है और एक निवेदन और आपसे करना चाहते हैं जी कि बोलिए। ऐसी कोई रचना है जो एक ही साथ कई रागों में जिसको हम समवेत रूप में गा सकें, मतलब हर बार उसको बदल बदल करके, कृपया वो कोई सुना दीजिए 2 पंक्तियां। कोई ऐसी रचना जो हर राग में बदल बदल कर गाई आए? जा सके। तो राग में। 2 राग में तो आ सकती है, किसी 2 राग में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जी सर। टीचर्स से भी हम वोट ऑफ थैंक्स करा सकते हैं, फिर हम भी करेंगे। एक जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जिन्हें लगा कि कुछ परिवर्तन हो सकता है म्यूजिक के माध्यम से क्लासरूम में, ऐसे कोई भी टीचर आए अपने आप से स्पॉन्टेनियसली और अपने से वोट ऑफ थैंक्स करें हमारे पूरे CCRT और टीचर्स ग्रुप की तरफ से। मैडम। जी मैडम। जी, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज, कौन कर रहे हैं? सुरेंद्र सिंह फ्रॉम। जी जी जी। सभी टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक का वो ज्ञान प्रदान किया जो हमें अब तक नहीं था। हमने काफी चीजें मैडम से सीखी हैं और भविष्य में भी हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार का ज्ञान हमें दिया जाए ताकि हमारी के प्रति आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मैं व्यक्त करता हूं सभी हमारे टीचर साहिबान की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र सर। और डॉक्टर सुधा मैम हमारे बीच में आई। हिंदुस्तानी म्यूजिक को हम कहते हैं, हम सुनते हैं एक्चुअली हमारे पूर्वजों से, पुरखों से, कि जब हमारे पूर्वज गाते थे उस वक्त में केवल जमीन ही नहीं, इस धरती से बाहर तक भी वो साउंड जाता है, उसका असर शायद और ग्रहों तक भी जाता है। ये भारतीय माइथोलॉजी का पार्ट रहा है, हम सुनते रहे इस तरह की बातें। और जब रागाज की बात करते हैं तो हम ये भी सुनते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग रागाज के साथ में प्रकृति में हम प्रभाव ला सकते हैं, कि बारिश की भी संभावना, ये जोड़ते हैं माइथोलॉजी में।
ऐसे हमारे देश में अनेक बात है जो हम सीखते हैं, और उसी में से हिंदुस्तानी म्यूजिक एक ऐसा अवयव है जिसको छोड़ के अगर हम चलें तो हमारी भारतीयता अधूरी रह जाती है। ये क्लास के दौरान मैं और एक चीज भी कहना चाहूंगा, डॉक्टर सुधा मैम, उनको वो भी मिस कर रही होंगी। हमने एक अमूल्य धरोहर, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई थी, अभी तो मैं स्वर्गीय ही कहूंगा, लता मंगेशकर जी। तो ये मंच है जहां डॉक्टर सुधा हमारे बीच में है और क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक के हैं, तो हम उनको भी श्रद्धांजलि दें। जब इतने लोग एकत्र हुए हैं, है ना, जब हम अकेले कुछ करते हैं तो कमी रह जाती है, जब हम समूह में करते हैं तो ऊपर वाला कहीं सुनता है। तो हमारी सीसीआरटी की ओर से, डॉक्टर सुधा मैम की ओर से, हम शिक्षकों की ओर से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि भी, ये धन्यवाद के साथ साथ। और डॉक्टर सुधा ने बड़ा ही स्कॉलरली आप लोगों को सिखाया, उनने स्टार्ट किया बहुत पीसफुली, 1 2 3 4 रागाज के बारे में बताया, है ना, ताल के बारे में, अलग अलग एरिया में अलग समय में हम जाते हैं तो कैसे जर्नी होती है म्यूजिक की। अब ये मैम हमारे शिक्षकों पे निर्भर है कि आपसे जो सीखा उसको किस तरीके से क्लासरूम में वो इनकलकेट कर पाएंगे, कैसे उसको म्यूजिक साइंस के साथ रिलेट करेंगे, कैसे लिटरेचर के साथ रिलेट करेंगे, है ना, वो फिर मेथोडोलॉजीज वगैरह ये सब सीख रहे हैं। तो डॉक्टर सुधा मैम को हमारे सीसीआरटी की ओर से और सभी टीचर्स फैटर्निटी की ओर से मैम हार्दिक धन्यवाद आपको। आप आए हमारे बीच में, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे शिक्षकों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और अपना ध्यान रखें मैम, और जल्दी फिर मुलाकात होगी। यस धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। मिथुन जी, अब हम बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं और थोड़ा सा हमें अवसर मिला है, क्योंकि आज 10 मिनट पहले हम है हमारे पास में अराउंड 20 मिनट्स होंगे जिसमें हम अपने टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स हमारे टीचर्स के साथ बात करना चाहूँ। मिथुन जी आप भी ध्यान दें कि ये जो प्रोग्राम है डियर टीचर्स एंड एजुकेशन सिस्टम, आप एजुकेशन को किस तरीके से लेते हैं? टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। Getting my point? It's a best investment. We are putting efforts for the new generation. Therefore, education is the best capital. इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। जिस तरीके से हमारा जीवन पढ़ाई में बदलता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। So education is the best capital. सबसे बड़ी पूंजी है हमारे पास में। तो जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, you people are practitioner. जैसे एक डॉक्टर मेडिसिन प्रैक्टिस करता है ना, बीमार को ठीक कर देता है, पेट दर्द सडन ठीक हो, आपको लगता है मैजिक हो रहा है, तो क्या आप क्लासरूम में वो मैजिक क्रिएट करते हैं? क्या आप अपने आप को वो प्रोफेशनल समझते हैं कि जब आप चाहते हैं स्ट्रोक उत्पन्न हो तो स्ट्रोक उत्पन्न होता है, जब आप चाहते हैं तो आपके सब्जेक्ट में एस्थेटिक्स पैदा होता है, आप कर पाते हैं? ऐसे चंद टीचर होते हैं, 100 में 10 टीचर होते हैं जिनके तरफ स्टूडेंट्स दौड़ते हैं। हमें 20-20 टीचर ने पढ़ाया, लेकिन मैं सिर्फ एक ही टीचर या 2 टीचर को जानता हूं, पांडे सर। पांडे सर ने अगर कह दिया तो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, ठीक है। तो टीचिंग ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को, अब जो एनईपी को लेके हम लोग चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? हमारे बच्चों को महामानव बनाना है, फिर से मोहम्मद इकबाल बनाना है, ठीक है, फिर से सरदार पटेल बनाना है, वैसे लोग, वैसी पर्सनालिटी फिर से हमारे देश में आए। हो रहा है अभी नहीं हो पा रहा है, शायद कहीं कुछ कंफ्यूजन है बीच में, ग्लोबलाइजेशन और नेटिव कल्चर के बीच में कहीं कॉन्फ्लिक्ट है बीच में, तो हमको उसको, उस खाई को, उस गैप को पूरे एनईपी में, इसीलिए लोकल कल्चर की बात कही गई है। सीसीआरटी आपके बीच इसीलिए आती है कि मेरिट के लिए काम करेंगे तो क्या करेंगे?
मेरिट तो ऑलरेडी 90% लेके आ रहा है, वो तो अपना करेगा जो करना है। और जो बाकी बेंच में पीछे बैठे हैं उनके लिए क्या है? हमको तो उन पे फोकस करना है। वो जो आप कह रहे थे ना प्राइवेट स्कूल्स में प्रेशर डालते हैं, ये प्राइवेट स्कूल्स में हो सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में हम प्रेशर नहीं डाल सकते, हिंदी मत बोलना, इंग्लिश मत बोलना, ये सब बातें आ सकती हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कभी भी नहीं। एनईपी में तो हम ये कह रहे हैं अभी 2020 में, द क्लासरूम मस्ट बी द जॉयफुल, एंजॉयबल, लोग मजे करें आपके साथ में सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में। ये टीचर का रोल है, आपको प्ले करना है, ठीक है। इसलिए सीसीआरटी आपके बीच में इंडियन कल्चर को लेके आ रही है। तो हम देख रहे हैं जी किसी ने वीडियो ऑफ कर रखा है, तो वो वीडियो ऑफ ही चल रहा है। तो सर हम भी आपको फिर ऑफ ही रखेंगे अपने में से, सीधी सीधी सी बात है। हम लोग ड्यूटी में हैं, तो ड्यूटी में हमें प्रॉपर लोग चाहिए। मैं उन पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा जो हमारे कंटेंट को वेस्टेज समझेंगे। हम उन्हीं के पीछे अपनी एनर्जी लगाएंगे जो लोग इस लिगेसी को, हमारे इंडियन कल्चर को वास्तव में न्यू जनरेशन के बीच लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे नाम मैं देख रहा हूं। हमने 90 रजिस्टर किया, जो टोटल एक्चुअल है, देखिए फैक्ट बात कर रहा हूं मैं, वो 40 और 50 के बीच मिथुन जी वेरी कर रहे हैं। तो हाँ, हमको कोशिश ये करना है। फिर किसी का अटेंडेंस 2 दिन है, फिर 2 दिन नहीं है, बाद में जो 2 दिन नहीं है ना, वही बंदा 50 लेटर लिखेगा, मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। भाई साहब, आप जब 2 या 3 दिन नहीं थे तो मैं किस मैट्रिक में अगर आपका एक बच्चा एक एग्जाम नहीं लिखा है तो मांगता रहे सर्टिफिकेट, आप उसको कैसे दे पाएंगे? अगर आप बोर्ड में भी होंगे तो भी नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, रूल्स पे रहे हम, पहली बात। दूसरा, मैं जो कंपोनेंट की बात कर रहा था, जब मूल्यांकन की बात आएगी, आपका मूल्यांकन 3 फेजेज में होगा, ठीक है। आप अभी इस प्रोग्राम के बाद में इमीडिएट जैसे प्रोग्राम खत्म होगा, आप एक फीडबैक इवैल्यूएशन भरेंगे कि पूरे प्रोग्राम में आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, क्या लर्निंग रहा, पैरेलल टू ईच ऑफ द क्लासेस। हर एक क्लास के लिए आपका मूल्यांकन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, अप्रिसिएशन क्या है, आपने क्या सीखा, क्या करने वाले, नंबर 1। नंबर 2, every 6 months you have to submit development report to the CCRT, learning from the orientation course, what are your action in the classroom toward the Indian culture you are inculcating and documenting, sending it to the CCRT. Very clear? Evaluation part 2। फिर आपको हम समय समय पे रिफ्रेशर कोर्स में बुलाएंगे कि कहीं आप इसको भूल तो नहीं रहे हैं, कहीं आप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक निश्चित समय के बाद 5 डेज रिफ्रेशर कोर्स में गुवाहाटी, उदयपुर, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में हम आपको बुला सकते हैं। उस समय में यहाँ से सीधे आपके स्टेट गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट ऑर्डर जाएगा, these 10 teachers are from the CCRT, they had orientation with us for 12 days, now send them to the Sikkim or either to Hyderabad for next 5 days training। तो अगर कोई अर्जेंसी नहीं है आपके लिए तो पक्का आपके स्टेट के लोग आपको डेप्यूट कर देंगे हैदराबाद में। मैं उस वक्त में पूछूंगा आपने प्रोजेक्ट पे क्या काम किया, आपने कंक्रीट क्या काम किया। तो आप अगर उस वक्त कहते हैं जी मैंने काम नहीं किया, तो अगेन आप पे जो हमने इन्वेस्ट किया वो बेकार हो गया। या हो सकता है आपके रिपोर्ट के आधार पे ही हम आपको रिफ्रेशर कोर्स में बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। मतलब आप अगर हमारे बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तब सीसीआरटी आगे आपके साथ है, आगे आपको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर जो लोग काम नहीं करेंगे तो हम उनको फिर नहीं बुला पाएंगे रिफ्रेशर कोर्स में, मेरा ये कहना है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग 15 डेज का और एक प्रोग्राम हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक मॉड्यूल बना रहे हैं, वो होगा एडवांस कोर्स। जो ओरिएंटेशन कोर्स करेंगे उन्हीं में से जो सिंसियर टीचर्स होंगे पूरे स्टेट, पूरे कंट्री से, उनको हम फिल्टर करके नेक्स्ट ईयर्स में से
एडवांस कोर्स में बुलाएंगे। तो ये जो फेसेस हमारे सामने इंटरेक्शन कर रहा है, सीख रहा है, लोगों से प्रॉपर है, बातें कर रहे हैं, आना नहीं आना अलग बात है, बट एक्टिव है। फिर बच्चों के बीच में जाके वास्तव में प्रयास कर रहे, उन्हीं को मिथुन जी बुलाएंगे, फिर हम स्क्रूटनी करेंगे। अब जो डे फर्स्ट से वीडियो बंद करके अब कुछ खा ही रहा है या किसी दूसरे बिजनेस में बिजी है, उसको हम बुला के करेंगे क्या? हम लोग उनको भी देख पा रहे हैं यहाँ से। आपको 24 आवर हमारे लोग देख पा रहे हैं, और आपके जो वर्क अभी लेसन प्लान जब आप बताएंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। आप जो प्रोजेक्ट वर्क करके देंगे उसमें क्लियर हो जाएगा हु आर सिंसियर, हु आर नॉट। आप अपने क्लासरूम के बच्चों को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? तो हम लोगों को भी ट्रेनिंग देते 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 22 साल 25 साल ऐसे ही हो गया। आप बातें करते हैं, हम लोग 2 मिनट में पहचान लेते हैं ये क्या करने वाला है आगे। ठीक है जी, ये एक्सपीरियंस होता है, जैसे आप टीचर एक्सपीरियंस्ड होते हैं अपने क्लासरूम में। तो ये मूल्यांकन की बात थी। अब चूंकि हमारे पास समय है, लेसन प्लान की बात हुई थी, मिथुन जी अभी आपको एक एक करके बताएंगे और प्रेजेंटेशन कराते हैं। प्रोजेक्ट्स को भी सुनेंगे लेसन प्लान के बाद कि हमारी क्या तैयारी है, कौन से टॉपिक में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या स्टेटस है। ठीक है, अभी वर्क करते हैं। मिथुन जी लेसन प्लान देखें हम पहले। ठीक है सर। टीचर्स जिन्होंने अपने लेसन प्लान पे काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, वो एक एक करके आगे आके आप हैंड रेस कीजिए और अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं अभी। तो अगर आप, तो हम भी बुला सकते हैं आपको, क्योंकि सारे प्रतिभागी को ही करना है और ये इस कोर्स का एक मौलिक पार्ट है। ये लेसन प्लान इस कोर्स का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है जिसको हम मिस नहीं कर सकते। तो हम स्टेट वाइज भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको तैयार हो चुका है, नहीं तो आप काम कर रहे हैं उसमें, तो आप आके एक बार प्रेजेंट कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैंने पिछले दिन एक प्रेजेंटेशन दिया था, मुझे अभी और देना पड़ेगा क्या? पिछले दिन आपने जब पूछा था तो मैंने प्रेजेंटेशन दिया था कि मैं लेसन प्लान में क्या कर रही हूँ, कौन से टॉपिक में। आपने लिखा था, वो टॉपिक भी लिखा था, आपने मुझे सजेशंस भी दिए थे कि कैसे बना लिया क्या बनर्जी मैम? आपने अगर बना लिया? सर फाइनल नहीं हुआ है, मतलब कुछ काम बाकी है। मैं कोई बात नहीं, कोई वो बात नहीं। वर्क में काम कर रही हूँ। अगर देखिए आपके पास रेडी है तो प्रेजेंट करें, जितना भी है। फाइनल नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, जितना हुआ है बताएं हमें डायरेक्ट। सर मैं बता सकती हूँ, मतलब सीधे सीधे पेजेस में आए। देखिए अभी हम बातें नहीं करेंगे। Those who are prepared, now we are on the 5th day of the program, 6th day. डे फर्स्ट लेसन प्लान डिस्कस किया गया था। अब हम ये बातें नहीं करेंगे कि मेरी तैयारी चल रही है, हो रही है, मैं आऊंगा फिर दिखाऊंगा बनाऊंगा। अब सीधे बातें आइए, पेजेज खोलिए, स्पष्ट बताए हाँ जी ये मेरा लेसन प्लान है। अगर यहाँ तक है, हाँ ये बोल सकते हैं मेरा ये पार्ट थोड़ा नहीं बना है, कोई बात नहीं। आगे बढ़े प्लीज, जो जो तैयार है मोस्ट वेलकम। मैम आगे बढ़े। जी सर। सर मेरा टॉपिक है क्लास 5th का लिटरेचर का टॉपिक है मेमोरी इन मार्बल। It's a topic where the students are made aware of the Mughal architecture through literature, because a specific part of the Mughal architecture, the best specimen of the Mughal architecture, which is the Taj Mahal, it is described how Shah Jahan, the history of the Taj Mahal, means the reason why the Taj Mahal was built, and how many workers were there for building the Taj Mahal, how it is regarded as a United Nations World Heritage. It is regarded as one of the 7 wonders of the world. So I would like to present my topic on how I would carry forward the class, and I would like to connect the students to their heritage, to their past. So in the very beginning of the class, I would show them a picture of the Taj Mahal, either in a projector format or through a chart. Then I will ask them 2 questions. If the students are attentive, they will
be able to answer or try to answer these two questions. The first question will be, what do you see in this picture? So that will be the process in which I will grab the attention of the students towards the class. The students will be immediately attentive. They will either say we see a building or we see a monument, or if they are knowledgeable enough, they can specifically point out the name of the Taj Mahal. And then I can go on to what is the color of this building. What you see is the color of this building. So they will obviously be knowing that it is white in color. They will see that it's white in color. Then I can ask them, can you tell me which monument a white color? So maybe some of them will be able to answer. Then I will go on to the explanations that the monument shown in the picture is the Taj Mahal. It is one of the magnificent monuments which is white in color, and because it is made in marble, it is white in color. And then I will go on to the text. I will ask them to open their textbooks and I will read the lesson. And in between the reading of the lesson, I will explain to them, because it's a literature topic and they are adept in their mother tongue Bengali. So I will have to give them the meanings of the difficult words in Bengali, as well as I will try to explain it to them in English, because that is my primary purpose, in order to make them understand. They will increase their vocabulary in that manner. So I will tell them that it was built during the reign of the fifth Mughal emperor, Shah Jahan, who was also known as Prince Khurram. Before he became the king, in his early life, he was named Prince Khurram by his father and mother. And then I will pose a question that, can you tell me the name of any other king or emperor which you have studied in your history book in India? They will be able to tell either the names of Mughal emperors, because Mughal dynasty is in their history chapter, so they will be able to relate it to the other subject. Then I will be telling them the history of how the Mughals came to India. The Mughals came to India in the 16th century. In the beginning, and Babur defeated the ruler Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. Then, after Babur, his son Humayun ascended the throne, and in this way, the Mughal emperor extended following the reign of Akbar, thereafter Jahan. Shah Jahan. Which subject you teach? Sir, the subject is literature, English literature. You are teaching English literature, right? So we have to, you are taking one chapter from your classroom itself. It is my request to all teachers. You need not to explore outside. First of all, whatever subject you are teaching, from there only you take a simple one, not difficult one, simple one. Probably ma'am is taking the class from the teaching book itself. आप वहीं से ले रहे हैं श्रीमोई मैम? Yes sir. Chapter story on story on marble. I'm asking you. Yeah, memory in marble. और that is already in your. को बता रही हूँ. नहीं मैं पूछ रहा हूँ. उनके चैप्टर में ही है. उनके चैप्टर में, very good. Like that only we have to take that one. But when you teach languages, ये पूरा भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए अब मैं लैंग्वेज में हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ. आप मैटर समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर. लेकिन मतलब ये सब उनके चैप्टर में ही है, इसीलिए आई एम जस्ट गिविंग देम द एक्सप्लेनेशन. Thing is that you are teaching your literature subject. Yes, absolutely. Yes. The essence of the chapter must be there. Yes. But we have to inculcate. Suppose I am teaching the physics, I should teach the Aryabhat. I should teach the cosmology of Indian thought. कि भारत के अंदर में एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, कि भाई उज्जैन में वेधशाला है, जयपुर में वेधशाला है, मेरे फिजिक्स में आना चाहिए, लेकिन उसमें फिजिक्स भी ना खो जाए. ठीक है, उसमें बैलेंस जरूर रखिएगा. वेरी गुड. ठीक है, श्रीमोई मैम काम कर रही हैं मैम. थैंक यू सो मच. यू आर वर्किंग ऑन इट. हमको यही देखना है. ठीक है, किसी और का प्रेजेंटेशन. वेरी गुड. यू कैरी ऑन. बट हम सबसे सजेशन लेते जाएंगे. मिथुन जी भी अभी सजेस्ट करते रहेंगे. हम आपके बीच में काम करते हैं.
एक हम थोड़ा सा अब राजस्थान आ जाते हैं, वेस्टर्न रीजन में आ जाइए। क्या तनवार जी रेडी है सर? हाँ जी, हाँ हेलो जी सर। हेलो सर। जी। सर मैंने ना एक 6th का एक चैप्टर है हमारा संतुलित आहार पर, उस पर मैंने यही एक टॉपिक लिया है, संतुलित आहार। जी तो जैसे सर इसको हम एक नाटकीय रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं कि 4 बच्चों को खड़ा किया है और वो सारे जैसे एक इस्लामिक धर्म से है, एक हिंदुत्व से, एक सिख से है। तो जैसे सिख में भोजन ज्यादातर वेज नॉन वेज मिक्स होता है, इस्लामिक मैम में मैम ज्यादातर मैम नॉन मैम वेज। मैम 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 आइडिया में मैं आ गया। अब आप फॉर्मेट पे आइए ना, ओके। लेसन प्लान का तो जो फॉर्मेट दिया उस पे आ जाइए। जी हाँ जी, तो सर जैसे हम एक एज ए कस्टमर जाते हैं तो उन बच्चों से पूछेंगे, जैसे बच्चे तो नहीं, वो हम लोगों ने एज ए शॉपकीपर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम पूछेंगे कि भाई मुझे कुछ खाना है, तो वो अपने अपने खाने के विषय में बताएंगे कि इसमें ये है, ऐसे है। तो वो नॉनवेज के बारे में बताएंगे, फिर मैं सजेशन लूंगी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो बताएंगे कि ये सब्जियां हैं, ये है, तो आप ये लीजिए, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, सब्जियां हैं, इसमें विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये दूध और दही है, इसमें कार्ब है, ये फैट है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी हमारे संतुलित आहार में बेसिक होता है, वो सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो बच्चे ही एक्सप्लेन करेंगे और उनमें फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। सर एक्चुअली इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, तो मैं सर थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश कर रही हूँ, आज और कल में होकर वो कंप्लीट हो जाएगा सर। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ आप जो बता रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आप फॉर्मेट के अंदर में जब आप घुसते हैं, आपने सब चैप्टर्स क्या बनाए प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि जी मेरा चैप्टर संतुलित आहार है, ठीक है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर में सब चैप्टर्स क्या बनेंगे, सब चैप्टर्स में मटेरियल क्या क्या। जब आप कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन बताएंगे तो कार्बोहाइड्रेट के समय में आप मीट तो दिखाएंगे नहीं, मिल्क भी नहीं दिखाएंगे, उस समय में आप राइस स्टेपल्स दिखाएंगे, ठीक है। तो जी वैसे सर। वैसे चैप्टर वाइज इनोवेशंस बताइए ना आप, ठीक है। ओके सर। जी जी सर जी जी। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा। कौन? सर मैं उषा लालवानी, मैम राजस्थान इनका से। इनका जी जी, आपको मोस्ट वेलकम है। इनको सुन लेते हैं पहले, तंवर मैम का कंप्लीट होने देते हैं। जी 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 सर। जी जी तो बताइए सर मैम। जैसे जैसे हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे तो संतुलित आहार पहले तो हम बताएंगे कि ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि भाई मुझे तो ना भूख ज्यादा लगी है, तो मुझे कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि मेरा काम ज्यादा होता है उस तरीके से। तो फिर बच्चे कहेंगे नहीं मैम हमारे पास ये भोजन है तो इसमें कार्ब पाया जाता है, ऐसे है। अच्छा मेरी आंखों में कमजोरी रहती है तो विटामिन ए के लिए रिक्वायरमेंट आती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे सब पार्ट्स हो जाएंगे सर हर एक का। जैसे आपने बोला सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू को अलग अलग डिवाइड करेंगे। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने एक सिर्फ संतुलित आहार लिया है, तो क्या हम इसमें माल न्यूट्रिशन या हम जो इससे होने वाले डिजीज है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, या सिर्फ इतना ही एक टॉपिक रखना है? क्योंकि लेसन प्लान मीन्स तो पूरा लेसन भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी हो सकता है। मैम उसकी सीमाएं बहुत क्लियर हैं। जब आपने संतुलित आहार में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक रिलेटेड है हेल्थ सर। प्रॉब्लम आप नहीं लिया अपने चैप्टर में, है ना। तो सर जब रिलेटेड चैप्टर को नहीं लिया है तो सिर्फ आप उसी पे स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने हेडिंग पे, तो ठीक सर है। सिर्फ फिर वो भोजन तक आ जाएगा, फिर उसमें उसकी कमी से जो होने वाला है वो मैं पार्ट हटा देती हूँ। नहीं नहीं, हटाइए मत। अगर उस चैप्टर में है ऑलरेडी तो क्यों है सर, पूरा हटाएंगे आप? कंप्लीट है। फिर तो बकायदा बताइए इस कड़वी विटामिन सी की कमी से कहाँ हो रहा है, क्या है, उसको विटामिन ए रिलेट से, करिए। बी से। जी सर। फिर उसको कल्चर से कैसे जोड़ रहे हैं? सर उसे हम ड्रामेटिक रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले हम्म 4 बच्चों को जैसे किया है, तो सर वो एक ड्रामा के रूप में प्रेजेंट हो रहा है। हम्म। दूसरा है बच्चे जैसे अपने खाने को जब बोलेंगे तो वो जो रिदमिक वे में थोड़ा सा उसको अपना प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सुनिए ना, फूड सीधा सीधा है, बिना खाए भजन होए न गोपाला, है ना। तो सीधा सीधा एग्रीकल्चर से फिर कल्चर में ले जाइए। आप जी उसको सर। पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस में ले जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर में ले जाएंगे अपने आप नाच गान में चला आएगा वो। जी सर। जी आप सर। रूट समझ रहे हैं ना। जी 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 सर। जितने जितने हम जो नाच गा रहे हैं ना पेट भरने के बाद, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जैसे खेतों से घरों में पहुंच जाते हैं, शादी ब्याह की तारीखें उसके बाद तय होती हैं। जी धान सर। बोते समय हम लोग फेस्टिवल मनाने का प्रोग्राम बहुत रेयरली करते हैं, ठीक है। तो आप ठीक है मैम, अच्छा चल रहा है, बट थोड़ा फोकस करें आपके यहाँ क्या हो रहा है सराउंडिंग में, उसको जरूर देखें। किताब कॉपी में केवल खोना नहीं है डियर टीचर्स हमको,
इनोवेटिव होना है, सोसाइटी में देखिए, क्योंकि क्लासरूम को सोसाइटी के बीच में लेके जाना सबसे बड़ा आर्ट है। मम्मा जी सर। जी, तो नेक्स्ट कोई मैम बोल रही थी। मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ अपना, पूर्णिमा फ्रॉम गुजरात। कोई मैम थी, क्या शुभ नाम था मिथुन जी? जी, लालवानी जी थे। हाँ जी मैम उषा जी। उषा लालवानी बोल रही हूँ, जोधपुर राजस्थान से। जी मैम। सर मैं साइंस टीचर हूँ, तो साइंस के एक टॉपिक में मैंने लेसन प्लान बनाया है। हाँ जी मैम। जी, वो मेरे टॉपिक का नाम है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, ठीक है मैम। जी, सबसे पहले तो मुझे उसके बारे में बताना है कि सामान्य उद्देश्य हमारे उसके बारे में क्या होंगे, कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, छात्रों की विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न होगी, छात्र चिंतन और तर्क शक्ति का विकास कर सकेंगे, उनकी प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि होगी और वो विज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोगी बना सकेंगे। फिर हमारे इसके विशिष्ट उद्देश्य होंगे कि छात्र पुष्प की बाहरी और आंतरिक संरचना को समझ सकेंगे, छात्र पुष्प की संरचना का चित्रण कर सकेंगे, उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में विकसित कर सकेंगे। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। फिर उसके बाद मैंने बनाया है कि हमारी सबसे पहले उस टॉपिक का जो पॉइंट है वो कैसे प्रस्तावना प्रश्न करके टीचर कैसे लेके आएगा कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चे बोलेंगे पौधे के 2 भाग मुख्य होते हैं। फिर टीचर पूछेगा दोनों भागों के नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे पौधे के मुख्य भाग होते हैं जड़ और तना। फिर टीचर पूछ सकते हैं कि पौधे के जो तने पर क्या क्या लगा हुआ होता है। तो बच्चे बोलेंगे तने पर फल, फूल, पत्तियां होती हैं। फिर टीचर पूछेगा कि पौधों का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है। तो बच्चे बोलेंगे पुष्प। फिर टीचर बोलेंगे पुष्प की संरचना कैसी होती है। फिर बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर हम कहेंगे कि हम आज पुष्प की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे कि सबसे पहले टीचर पूछेगा कि आपने कौन कौन से पुष्प देखे हैं अपने आसपास। कौन से क्लास के लिए बना रहे हैं मैम आप? 8th क्लास के लिए सर। हाँ, 8th क्लास 8। 8th आपने कैसे अपने से सोच लिया और पुष्प के अंदर की चीजें नहीं बताएगा? बताएगा वो। पर इतना वो अभी तो क्लास 3 का बच्चा धुआंधार बता रहा है। जी जी सर। हम नहीं बता पाते, वो चीजें बताने लग रहे हैं। पर जो प्रश्न है पुष्प की संरचना कैसी होती है, तो वो इतना एकदम नहीं समझ पाएगा कि मुझे उसके पार्ट्स बताने हैं या उसके बारे में कैसे बताना है। तो इसके लिए हम कहेंगे आपने अपने आसपास सबसे पहले कौन कौन से पुष्प देखे हैं। बच्चे बताएंगे गुलाब, गुड़हल, कमल का फूल, ये सब देखे हैं हमने। फिर हम कहेंगे गुलाब या गुड़हल के फूलों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है। बच्चे बोलेंगे कि गुलाब के फूल में जैसे ज्यादा पंखुड़ियां होती हैं, पास पास होती हैं, गुड़हल के फूल में थोड़ी दूर दूर और बड़ी होती हैं। फिर हम पूछेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। फिर कुछ बच्चे बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो हम उसे गुड़हल का फूल या कोई भी ऐसा सिंपल फूल दिखाकर बताएंगे उसमें से एक एक कि इसके 4 भाग, इसमें मुख्य 4 भाग होते हैं पुष्प के। सबसे पहले हम उसके फूल के नीचे की जो हरी पत्ती के टाइप की जो शेप होता है उसे बाह्य दल पुंज बताएंगे कि ये बाह्य दल पुंज होता है, ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। जब पुष्प कली के रूप में होता है तो ये कली की रक्षा करता है, फूल को खिलने से पहले उसकी ये रक्षा करता है उसके ऊपर। अच्छा ठीक है मैम, ये हमें क्लियर हो गया। जैसे आप सेपल्स बता दिए, पेटल्स बता दिए, एंथर बता दिया, फिलामेंट बता दिया, पराग सब बताया। अब उसके बाद संस्कृति से कैसे कनेक्ट करेंगे? यही हमें सीखना है इस प्रोग्राम में। फिर ये तो मैंने बॉटनी बता दी। जी सर। अब बॉटनिकल एस्पेक्ट के बाद मैं संस्कृति पे कैसे जंप करूंगा और लोकल संस्कृति को कैसे कनेक्ट करूंगा क्लासरूम में, जिससे बच्चे अवेयर हो पाएंगे। पढ़ते पढ़ते, बॉटनी पढ़ते पढ़ते वो अपनी पास की संस्कृति को भी सीख पाएंगे। वो हमें इस लेसन प्लान में लेके आना है। जी सर। जी जैसे कोई कविता के माध्यम से
इसी पे चिंतन करिए डियर टीचर्स। आपको बिगिनिंग में ये बताया गया था, लेसन जी प्लान मेरे से मास्टरी आपकी ज्यादा है। जी आप सर। एनसीईआरटी से ट्रेनिंग लेते हैं, एससीईआरटी से, अपने स्टेट गवर्नमेंट से, तो लेसन प्लान तो आप टिपिकल अपने अपने सब्जेक्ट में, आपको कौन चैलेंज करेगा। अभी हमारा चैलेंज ये है कि भारतीय संस्कृति को उस सब्जेक्ट में बॉटनी पढ़ाते समय लाना है। तो जी सबसे सर। पहले अपने सराउंडिंग के फ्लावर को देखिए। कल ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा था घर में, तो अपराजिता की बात आई, अपराजिता फ्लावर, ठीक है, कि जी 5 सर। लाइन लिखिए, तो ठीक है, उसका मैंने बॉटनिकल या जो फूल दिखता है ब्लू कलर में अपराजिता, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, हम्म, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति में अपराजिता का क्या रोल है। तो मैं देखूंगा महादेव को सबसे ज्यादा पसंद अपराजिता फूल पसंद है, ठीक है। फिर जी सर। अपराजिता क्या मेरे सराउंडिंग में दिल्ली में मिलता है, तब मैं अपराजिता पे बात करूं। पता चला जी यहाँ सर। नहीं मिलता मेरे यहाँ, मैं बच्चों को दिखा नहीं सकता। तो आपके सराउंडिंग के फ्लावर, आपके गॉड गॉडेसेस, आपके वर्शिप सिस्टम, मैं नहीं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का हो सकता है, उसमें जी फ्लावर अगर कहीं ना कहीं हम अपने सोसाइटल चीजों से, फिर कल्चरल चीजों से रिलेट, या आपने बड़ी अच्छी बात कही मैम, कोई कविता है जिसमें उस फ्लावर के बारे में कोई गीत या संगीत में क्या आपके क्षेत्रीय भाषा में लिखा हुआ है क्या, तो हो सकता है उस गीत को भी हम गाएं क्लासरूम में, है ना। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, एक गाना है, जी सर। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है हिंद देश, है जी ये गाना। जी सर। तो फिर आप बेला गुलाब जूही चंपा कुछ अगर पढ़ा रहे हैं, तो जी उसको सर। तुरंत अगर आप लिटरेचर से, गाने से रिले, बस हो जाएगा, थोड़ा कुछ काम हो जाएगा हमारा। जी सर। ये लायन लेसन प्लान में करते करते, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, आप बॉटनी में अच्छा रिलेट कर रहे हैं। और देखिए हम फिर प्रोजेक्ट में जंप करेंगे। जी सर। समय चूंकि है, आप लोग को भूख भी लगी होगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होगा, ग्लूकोज डाउन जा रहा होगा, है ना। मैम बॉटनी की हैं तो समझ थैंक गई यू। हो। थैंक यू सर। और एक लेते हैं किसी दूसरे डायरेक्शन से। मैम कहाँ से हैं? मैम राजस्थान से थी। राजस्थान। जी जी। और कोई डायरेक्शन से ले लीजिए। निशांत बेजबरुआ जी है। हेलो सर। असम, असम, यस सर मेरी जो लेसन प्लान मेरा जो था, सो दिस इज द लेसन सर, आप देख रहे हो सर। सर दिस इज फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे क्या है, द नेम ऑफ द लेसन इज चंद्रबाबा सैकियानी, हु वाज वन ऑफ द फीमेल फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम असम। तो उनकी सारी जीवन की जो भी उनके बायोग्राफी है, उसके ऊपर ही ये लेसन लिखा गया है। और इस लेसन का जो मेन एम है, दैट इज क्या टू शुभ क्रिएट। नाम, क्या शुभ नाम बताया सर उनका, फ्रीडम फाइटर साहब का? चंद्रप्रभा सैकियानी सर। हमारे व्हाट्सएप में शेयर करिएगा सर, हम लोग डेटा भी कलेक्शन कर रहे हैं, वो डेटा हमारे साथ आ जाएगा प्लीज। हाँ, वो चैप्टर को शेयर कर दीजिएगा। जी सर डेफिनेटली सर। सर तो जैसे कि मेरे जो पहले वक्ता थी मैम, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि एक आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा, तो इसमें अगर मैंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिया है, क्या मैं मतलब कैन आई टेल ऑल दिस? यस यस, वेलकम। सर थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है तो थोड़ा सा मिक्सअप करके बोलूंगा सर। तो सर मेरा जो जनरल जो लर्निंग मेन जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स था है लेसन प्लानिंग का, दैट इज टू, पहला बात हो गया कि टू मेक द लर्नर्स फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वुमेन इन द सोसाइटी। ठीक है सर। तो इसको लेकर मैं एक उनको कंपेरेटिव एक मतलब एक एनालिसिस उनके आगे रखूंगा सर। जैसे कि राइट एंशिएंट टाइम में किस तरीके का प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था, उसके बाद जो हमारा अभी मॉडर्न जो फेज है, इन दिस फेज सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय फीमेल्स राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड टू नो मतलब आपका आफ्टर मैरिज इवन। तो इस तरीके का एक मतलब एनालिसिस में उनका अगर रखूंगा, जो भी सोसाइटल जो भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि उनका घर पे मम्मी को किस तरीके का रोल प्ले करना पड़ता है एज कम्पेयर टू देयर फादर। ठीक है, अगर घर पे उनका कोई दीदी है तो दीदी को कितनी मतलब अगर उनका भाई है या दीदी है तो उनको कुछ तरीके से एक डिस्टिंग्विश किया जाता है बेस्ड ऑन देयर जेंडर। तो इस तरीके से एक मतलब काइंड ऑफ उनको मैं कनेक्ट करने के लिए ट्राई करूंगा इन दिस लेसन। उसके बाद
क्या होता है कि हमारा जो मतलब इन जो भी हम अब जैसे कि दिस लेसन इज रिलेटेड टू द फ्रीडम फाइटर्स, तो कौन कौन इस तरीके के फ्रीडम फाइटर्स थे जो महिला थी, उनके जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द नेशनल लेवल टू द रीजनल लेवल, तो उनके बारे में भी मैं उनके समक्ष कुछ बातें बोलूंगा सर। उसके बाद मेरा कोशिश रहेगा इन दिस क्लास कि मैं बच्चों के अंदर बी इट ए बॉय बी इट ए गर्ल, उनके अंदर एक जेंडर सेंसिटिविटी लाना है, मतलब मुझे लाना पड़ेगा कि आजकल जैसे कि सोसाइटी में हम कुछ हद तक जेंडर इनसेंसिटिव हो रहे हैं, तो इसको लेकर सर मेरी कोशिश रहेगी कि टू क्रिएट जेंडर सेंसिटिविटी अमंग द लर्नर्स। सो दीज आर द जनरल objectives of my lesson plan. Then I have some specific objectives as well. तो specific objectives because this is related to the literature, तो मेरा एक कोशिश रहेगा कि to enrich the vocabs of the learners with new terminologies. Then मैं learners का जो comprehensive जो उनकी understanding ability है उनको भी मैं चेक करूंगा, ठीक है। जो भी पैराग्राफ आपका लेसन में रहेगा उस पैराग्राफ को उनके जो मतलब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बाहर लाकर, उसके बाद उनके अंदर जो भी मतलब इन द क्लासरूम में जो भी बच्चे या जो भी मतलब स्टूडेंट्स रहेगा उनके अंदर एक जो रीडिंग एप्टीट्यूड होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी वीक इन रीडिंग स्पेशली इंग्लिश, तो उनके अंदर एक रीडिंग एप्टीट्यूड लाने का भी मेरा एक कोशिश रहेगा सर इन द क्लासरूम। सो दीज आर माय जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टेज रहेगा, तो प्रेजेंटेशन स्टेज में मैं जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर मतलब जो भी रूल्स है या जो भी कस्टम्स है रिलेटेड टू जेंडर, जैसे कि आप मतलब जैसे कि मेंस्ट्रुएशन का टाइम है, लड़कियों को कुछ स्पेसिफिक नीति नियम पालन करना पड़ता है जो हमारे सोसाइटी के मतलब अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो उनका ऊपर भी एक साइंटिफिक एनालिसिस में करना कोशिश करूंगा कि कितना दूर तक वो सही है, कितना दूर तक वो सही नहीं है। और साथ ही साथ हमारे सोसाइटी में मतलब लड़कियों की एम्पावरमेंट को लेकर जो भी कुछ हो रहा है राइट फ्रॉम द पॉलिटिकल लेवल टू द सोसाइटल लेवल, जो भी हमारे ट्रेडिशंस में उस तरीके की परंपरा है जहाँ पे हम देवियों को पूजा करते हैं, जहाँ पे हम मतलब जो फीमेल हुड हो उनको हम काफी अप्रिशिएट करते हैं, उनके बारे में भी मैं उनको मतलब आई विल ट्राई टू मेक देम फेमिलियर विद दोस फैक्ट्स एज वेल। क्योंकि नहीं तो मेरा मानना है कि अगर मैं सोसाइटी को ऐसा मतलब प्रेजेंट करूंगा कि सोसाइटी इज वेरी जेंडर इनसेंसिटिव, तो लड़कियों के अंदर एक डिमोटिवेशन भी आ सकता है। तो मेरा Bejbarua sir, to whom you teach, to which classes you teach? Sir, this is for class 8 sir. Class 8 co-ed, it is co-education class? Yes sir. Okay. But see, when you create some social issues, no, cultural and social, there are two issues also. Some of things you are talking about, then to depth in the topic going in the class 8. Many things we have to test with the principals also. Are you getting my point? जब आप लोग कुछ एक्टिविटी करें तो अपने प्रिंसिपल्स को भी जरूर साथ रखें। जब आप कोई कंपोनेंट इंटरवेन करें तो मेरा सजेशन है आप लोगों से कि अपने प्रिंसिपल साहब से भी जरूर चर्चा करें, ठीक है। और 2-3 लोगों, तो उसमें क्या होता है, व्हेन वी राइट एनी पेपर और रिसर्च एनीथिंग वी गेट क्रिटिकल कमेंट्स। आप समझते हैं, आलोचना जब होती है ना तो वो बुराई नहीं कहते हम उसको, आलोचना से हम निखरते हैं, है ना बेजबरुआ सर, ठीक है। सो नाइसली यू आर मेकिंग गुड थिंग्स, बट कल्चरल कंपोनेंट्स को लाएं, देशभक्ति की चीजों को। जब फ्रीडम फाइटर की बात आप कर रहे हैं तो क्यों ना हम देशभक्ति की चीजों को लाएं सर, मुझे लगता है ना, मानो अमानो भावे वाले चीजों को, जो भावनाओं को, आमी अखमिया वाला जो मैटर है उस कंसेप्ट को क्लास में लाएं। चलिए आज चूंकि समय का हमारे पास कमी है, चलिए थैंक यू सो मच टीचर्स, आप लोगों के पेशेंस के लिए। आप लोग ट्रबल भी बियर कर रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।